Okay, good morning, students. So, we'll be starting the subject which is digital image processing. Okay, and this is the first lecture which will include the basics of image processing. Okay, so let me first of all let you know that ये जो image processing है, this subject digital image processing, it is actually a subset of a even wider or vast subject which is known as signal processing. Okay, मतलब signal processing ऐसा subject है जिसमें हम study various type of signals and processing related to those signals. Now, image is also a type of signal. Okay, signal क्या होता है? Firstly, we must know that what is signal, right? Signal is any action or expression or anything जो कि हमें किसी particular information, जो हमें information दे रहा हो, कुछ भी है ना, like someone waving hand, like a friend of yours is waving hand at you to let you know something that here I am. तो वो क्या है? एक signal, एक information है ना कि हाथ हिला के उसने हमें बताया मैं यहाँ हूँ. Similarly, तो कोई भी एक ऐसा action या फिर expression जिससे हमें कुछ information मिल रहा हो, that is a signal. The signal can be anything like text or image or audio or video or text, right? Speech, in fact, speech, these all are signals. So image is also a type of signal और it is also an example of signal. तो signal processing बहुत बड़ा subject है जिसके अंदर we have one of the career as image. ठीक है? So as written here, it is a discipline in electrical engineering now and in mathematics. See, अब इतना ज़्यादा technology is being mixed that we have interdisciplinary subject. So we can't deal with only subjects which are related with one of the engineering branches. It includes various others too. क्योंकि इतने ज़्यादा advancement के साथ साथ we cannot stick to one of these, right? तो signal processing, of course, it is a discipline in electrical engineering, but it is being studied now in every other branches too. So what it means is it deals with analyzing and processing of analog and digital signals. यानी दोनों ही signal के analysis को हम signal processing बोलते हैं. ठीक है? It involves या फिर it deals with storing, filtering and other operations on signals. क्या क्या operation करता है signal पे? अब ये signal है क्या? तो these signals include transmission signals, sound or voice signal, image signal and other signals as I just stated. Now out of all these signals, वो field जिसमें कि हमारा type of signal input में भी image हो और output में भी image हो, that is known as image processing. Okay, तो यहाँ पे we are defining image processing as a field in which we will have the input as an image as well as the output also as an image. Now, as the name suggests, it of course deals with processing on images. Okay, now this particular field can be further divided into analog image processing and digital image processing. Okay, now as far as the definition goes, here it says that analog image processing is done on analog signals, of course. Now it includes processing on two-dimensional analog signals. And in this type of processing, the images are manipulated by electrical means by varying the electrical signals. Common example include the television image. See, अब when next वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है digital image processing में कि deals with developing a digital system that performs operations on a digital image. Of course, analog image processing क्या होगी? जिसमें कि हम analog image पे processing करें. Similarly, DIP digital image processing क्या है? जिसमें हम digital image पे process करें. Now, what we first need to know is कि what is image? ठीक है? Firstly, let me tell you this. Then again, I'll tell you कि what is actually analog image and what is digital image and how do you differentiate it, right? तो सबसे पहले image क्या है? यहाँ पे खुद डिफाइन है, तो let's read that. What is an image? An image is nothing more than a two-dimensional signal. Okay, दो dimensional signal जो भी है, that is an image. ठीक है? It is defined by a mathematical function f of xy, जहाँ पे x और y क्या है? दो coordinate हैं, horizontal और vertical. Like let me show you here. Oops. Yes, here. Okay, so like this is the vertical axis and this will show you the horizontal axis. Okay, see, देखो हम इसको कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं, but in my notes you will find that I have almost always named the horizontal axis as x-axis and vertical axis as y-axis. So that's why I'm naming it again here to avoid any confusion in future. Okay,
सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट. अब देखो इमेज तो कैसा भी होगा ना, मान लो ये एक इमेज, ठीक है, जरूरी नहीं है स्क्वायर ही हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एग्जैक्टली, बट यस नाउ दिस इज अ स्क्वायर काइंड ऑफ, आई गेस. ओके, सो अगर मान लो ये एक इमेज है और मैंने अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में कुछ एक एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा यहाँ पे, और इससे स्ट्रेट जाता हुआ यहाँ पर इसका एक वाई एक्सिस का वैल्यू होगा. तो अज्यूमिंग कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 10 है, ओके 10 है, और वाई एक्सिस की वैल्यू 20 है. ओके, तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, 20, राइट. दिस इज द कोऑर्डिनेट वैल्यू. अब कोऑर्डिनेट वैल्यू के साथ साथ, ये तो कोऑर्डिनेट वैल्यू हुआ, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट का अपना एक इंटेंसिटी वैल्यू भी तो होगा. दैट इंटेंसिटी वैल्यू इज अ नंबर, लेट मी नेम इट एज, राइट इट एज 128. अब ये 128 के पीछे भी देयर इज अ रीजन दैट कुछ भी हो सकता है ये वैल्यू, बट वो वैल्यू क्या होगा, किस रेंज में होगा, वी विल गेट टू नो अबाउट इट लेटर. बट फॉर नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, और ये क्या है, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट. ओके, यस. सो तो ये तो हो गया इमेज की बात. नाउ अब इस इमेज में हम, एनालॉग इमेज क्या है ना, हम जो भी अपने रियल वर्ल्ड में अपने आंखों से देख रहे हैं, दे ऑल आर एनालॉग इमेज. ओके, जो फिलहाल फंक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल एन एनालॉग इमेज. और जैसे ही हम इसको कैप्चर कर लेते हैं, इट बिकम्स डिजिटल इमेज. व्हाई? क्योंकि हियर हम कैप्चर करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लिमिटिंग द रेंज ऑफ दिस एक्स वाई एंड द इंटेंसिटी. अभी तो देखो, अगर इफ यू ट्राई टू सी अपने रूम में बैठ के, अब रूम में तो क्या है, वॉल्स बना दिए गए हैं, अगर बाहर चले जाओ थोड़े से, आई मीन बाहर जाओ और वैसे देखने की कोशिश करो, तो यू कैन सी एज फार एज यू हैव गॉट साइट. ओके, अब अगर मान लो समवन हैज गॉट मायोपिया, किसी को देखने में इशू है, तो मे बी शायद वो 1 मीटर 2 मीटर तक देखे, पर कोई 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर तक भी देख सकता है. Depends upon your sight and of course the obstacles in between. अगर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो बहुत दूर तक देख सकते हैं. दैट मीन्स देखने के लिए बाहर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो हमारी आंखों का रेस्ट्रिक्शन है कि हम कितनी दूर तक देख पा रहे हैं. बट देयर इज नो एनी लिमिटेशन, राइट, इन एनालॉग वर्ल्ड, इन एनालॉग इमेज में. और डिजिटल इमेज में क्या होता है कि हमने पिक्चर खींच के उसका एक रेंज बना दिया है कि भाई इतने ही तक ही इमेज आएगा, इससे ज्यादा के बाहर का हम देख ही नहीं सकते. So where there is a range and limitation associated with an image, that is a digital image. Okay, so that was about the image. Now see, जैसे example image का, ठीक है, this is example. ये जो image दिख रहा है स्क्रीन पे, this leaf with a droplet, it is an image. But ये image is basically, actually this image is nothing but a 2-dimensional array of numbers ranging between 0 and 255. See, ये जो 0 और 255 आया है, इसका भी एक मतलब एक रीजन है. ऐसे ही नहीं कि हमने कोई रैंडमली कोई नंबर ले लिया है. लेट यू नो अबाउट दिस लेटर ऑन. फिलहाल के लिए दिस इज अ रेंज. और ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ना, 128, 30, 123, 232, 123, 321, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. जैसे मान लो इस पॉइंट पे, अभी तो ये रैंडमली रिप्रेजेंटेशनल वैल्यू के लिए बस बता दिया गया है, बट इसका एक एरे होगा, ठीक है, वो हर एक पॉइंट पे, हर एक पिक्सल पे हमें वैल्यू बताता है कि इस, जैसे इस ग्रीन कलर का कुछ एक वैल्यू होगा 127 मान लो, ब्लैक का 255, ठीक है, फिर यहाँ पे व्हाइट है उसका 0, कुछ भी, मतलब ऐसे वैल्यूज होंगी और इन सारे पॉइंट का एक एरे बनता है. और ये यहाँ पे तो बस 3x4 का एक है टेबल, बट एक्चुअली इट विल बी अ वेरी बिग मैट्रिक्स वैल्यू. ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली ये बताया जा रहा है इस इमेज से बस ये कि इमेज कुछ नहीं होता, बस एक नंबर्स का एरे होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट एन इमेज एक्चुअली इज. नंबर से ही फॉर्म होता है. ओके, और ये जो नंबर होंगे ना, ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर बताता है ग्रे लेवल. नाउ दिस इज द टर्म ग्रे लेवल. ग्रे लेवल क्या है? इट इज बेसिकली, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द प्रेडिक्टेबल और डिटर्मिनिस्टिक चेंज इन द शेड्स और लेवल्स ऑफ ग्रे इन एन इमेज. यानी एक इमेज में इंटेंसिटी की वैल्यू, ये इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी है, जो वैल्यूज चेंज हो रही है, दैट इज ग्रे लेवल. और इन लेमैन टर्म्स ऐसा समझ लो कि जो कलर्स होते हैं ना, कितने कलर हमें दिख रहे हैं, अलग अलग कलर्स, दैट इज ग्रे लेवल. अब देखो एग्जैक्टली दिस इज नॉट डिफाइनिंग, दिस इज व्हाट आई एम हेल्पिंग यू विद अंडरस्टैंडिंग. ओके, टर्म्स में तो तुम्हें ऐसे ही लिखना है डेफिनेशन में. या फिर दूसरे हम क्या बोल सकते हैं कि ग्रे लेवल रेजोल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स पर पिक्सल. अब उसके लिए पहले बिट्स पर पिक्सल वी नीड टू स्टडी. तो बिट्स पर पिक्सल क्या है?
दिस इज बेसिकली हम एक पिक्सल में कितने बिट्स ले रहे हैं, या फिर वो डिपेंड करता है कि डेप्थ ऑफ कलर क्या है। ओके देखो बिट्स पर पिक्सल को भी रिप्रेजेंट यूजिंग स्मॉल के और कैपिटल एल इज द ग्रे लेवल रेजोल्यूशन। तो इनके बीच में एक रिलेशन है विच इज कैपिटल एल इक्वल्स टू 2 की पावर के, यानी के इज द नंबर ऑफ बिट। अगर मान लो के 3 है तो कैपिटल एल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, यानी मेरे पास अगर 3 बिट है, 3 बिट पर पिक्सल है, तो ग्रे लेवल्स कितने होंगे मेरे पास 8। सिमिलरली अगर k इक्वल्स टू 8 है तो मेरे पास ग्रे लेवल्स हो जाएंगे 2 की पावर 8 विच मीन्स 256। So that is what we mean by BPP, which is bits per pixel. Okay, so this was about this lecture and we will again resume this with the next lecture. इनके बीच के आगे के images के types and all these.